तो शी टोल्ड मी कि यार वनिका तुम बहुत सैड बातें करती हो यार, तुम हैप्पी हैप्पी बातें करोगी ना, देखना तुम्हारी ग्रोथ होगी. आई ग्रू फ्रॉम 70,000 टू 365K. मेरा इंस्टाग्राम पूरा सेल्फिश है, ठीक है. मैं अक्सर वही चीज़ें डालती हूँ जो मुझे सुनने की ज़रूरत है. आई टेल एवरीबडी आई एम जस्ट क्रिएटिंग फॉर दोज 10,000 वनिकास दैट आर सिटिंग एंड फीलिंग द सेम फीलिंग्स दैट आई एम फीलिंग. Hello, welcome to a new episode of the Social Nation show where we get candid with your favorite creators. आज मेरे साथ है one of those creators who's young, dynamic, and a real change maker. She's managed to inspire me to look at life in a whole new perspective. And why just me? I'm sure her 422K followers on Instagram believe in that too. Her motto in life is to tell 10 million girls, "Tu kar legi yaar." But I just want to say one thing to our guest for today, "Tune kar liya yaar." Today, I welcome on the Social Nation show a storyteller, a poet, a spoken word artist, an entrepreneur, and so much more. Welcome, Vanika. I'm so happy and oh my god, बहुत ही I can't believe it's for me. Lovely. So let's start with your content. I just feel there's one word that I can talk when I see your content. There's just one thing that comes to my head, and that's wholesome. It's so raw, it's unfiltered, it's true. And you know, on Instagram, on a platform like Instagram, it's so easy to be superficial and sort of digress from what you want to tell your audience. How do you manage that? It's because I started Instagram because I wanted it to be a wall of who I am. It was never for the people, it was never for making something out of it. It happened because I just liked sharing who I am with people and I wanted it to be that way. But it started with that and it was, मैंने ना मेरी जो जर्नी रही है विद इंस्टाग्राम, इट हैज़ बीन वेरी अप्स एंड डाउन्स वाली. जैसे व्हेन आई स्टार्टेड आई यूज्ड टू शेयर अबाउट द एनजीओ दैट आई वाज वर्किंग ऑन एंड आई यूज्ड टू शेयर अबाउट माय एक्सपीरियंसेस, चाहे वो मेरी फैमिली के साथ हो इन रिटन फॉर्मेट, एंड आई वाज जस्ट डूइंग इट फॉर फन. But then one of my reels went viral and suddenly from 10,000 I had 70,000 in 2 days. So I did not know what to do with them. तो मैं उस टाइम पे कोशिश कर रही थी to put out the similar content but it was not working out. It did not work out for an entire year. Then I figured out कि I want to tell my stories in 1-minute reel format. I would put my voiceover over it. And I started doing that and eventually for like in that 45 days period I grew from 70,000 to 365K. और उसके बाद आई डिस्कवर्ड छोटा छोटा चीज़ें. तो वो कभी भी ऐसा नहीं रहा कि कांस्टेंट ग्रोथ रही है. मेरे साथ ऐसा होता है कि लाइफ में मूवी चल रही है, एक अप पॉइंट आता है जहाँ पे मैं कुछ डिस्कवर करती हूँ एंड आई क्रिएट इट रेगुलरली एंड देन इट जस्ट गोज विद दैट. And there are times when I'm not able to figure that one thing out that really clicks with that particular point in time of my life. तो मेरे लिए it has been that journey of discovering who I am, accepting myself through Instagram, through telling my stories and through connecting with people. और मुझे genuinely ऐसा लगता है कि अगर ये पूरा प्रोसेस अप एंड डाउन का नहीं होगा ना तो वो होलसमनेस और वो ऑथेंटिसिटी चली जाएगी. इसीलिए व्हेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आई एम लूजिंग फॉलोअर्स और आई एम नॉट एबल टू क्रिएट कंटेंट, आई गिव माई सेल्फ दैट शॉर्ट ब्रेक जो आजकल पॉसिबल नहीं है. जैसे रिसेंटली आई वॉज टॉकिंग विद वन ऑफ द क्रिएटर्स एंड आई वॉज टेलिंग हर कि लास्ट कुछ टाइम से ना मैं बहुत स्टक फील कर रही हूँ, मेरे पास आइडियाज़ नहीं आ रहे, आई डोंट नो व्हाट आई शुड डू. तो शी टोल्ड मी कि यार वनिका तुम बहुत सैड बातें करती हो यार, तुम हैप्पी हैप्पी बातें करोगी ना, देखना तुम्हारी ग्रोथ होगी. एंड देन इट गॉट स्टक विद मी कि यार मैं क्या सबको मैं बहुत सैड लगती हूँ. एंड आई thought about it for a very long period and I felt very demotivated by it as well. जबकि वो मुझे कुछ सिखाना ही चाहती थी. लेकिन then I got connected to one of my followers and she told me that she followed me because of my authenticity. And there are people who resonate with my voice, चाहे वो इतना जल्दी 1 million ना हो या फिर इतना जल्दी 2 million ना हो, but there are people who follow me for my authenticity and I want to keep creating for them. That's lovely, and we hope you keep creating because it's so good to see you know, real, fresh, like it's got that little bit of rawness, but it's just beautiful. Let's start from the beginning. Do you remember the first piece you ever wrote, because you write so beautifully? Do you remember what you wrote for the first time and what was it? वो तो याद नहीं है क्योंकि मैंने ना आई थिंक
10th 11th में इंस्टाग्राम पे ऐसा पोस्ट करना शुरू किया था। और अब तो पता नहीं कितने 10-12 साल हो गए उस बात को। सो आई वुड रैंडमली पोस्ट फोटोज एंड राइट beneath them the caption। बट इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि आई कम फ्रॉम जयपुर और मेरी जो फैमिली है वो बहुत कंजर्वेटिव है, तो उनको नहीं समझ आता कि लड़कियां ज़्यादा है ना कुछ डिफरेंट प्रोफेशन करें। माई फादर, माई मदर, एवरीबडी अराउंड मी हैड अ सर्टन काइंड ऑफ लाइफ एंड दे ऑल्सो वॉन्टेड मी टू मोल्ड इन दैट। तो बट ऑन द अदर हैंड मैं स्कूल में हमेशा से रिबेलियस लड़की थी, है ना। आई वॉज फ्रॉम अ गर्ल्स स्कूल। मम्मी पापा ने इंश्योर किया कि लड़कियों के पास ही रहूँ ज़्यादा, है ना, ताकि एक फीमेल ग्रोथ स्पेस रहे। लेकिन मुझे, है ना, फ्रेंड्स बनाने से जो लड़के हैं, तो मैं कॉलोनी के दोस्तों से, उनके दोस्तों से कनेक्ट कर रही हूँ। एंड व्हेन आई स्टार्टेड माई इंस्टाग्राम आई वाज श्योर कि जस्ट लाइक माई फेसबुक वॉज क्लोज्ड, मम्मी ने फेसबुक चलाने से मना कर दिया था, वैसे इंस्टाग्राम भी मना कर देंगे। तो मुझे ये था कि कुछ फिगर आउट करना है जिससे उन्हें पता ही ना लगे कि मैं इंस्टाग्राम पे हूँ। तो व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड इंस्टाग्राम एंड आई स्टार्टेड पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम, आई हैड अ यूजर नेम कॉल्ड कायरा। तो कायरा वॉज बिफोर डियर जिंदगी, है ना। और कायरा का मैंने इटालियन ओरिजिन नेम, इट्स एन इटालियन ओरिजिन नेम जिसका मतलब है एवरीवन्स बिलव्ड। तो आई यूज्ड टू राइट अंडर अ पेन नेम एंड नेवर रिवील दैट इट इज वनिका। Wow. So I would write about periods, I would write about, है ना, girls and their relationship with their fathers, and I would write all of these rebellious things जिसके बारे में अगर मेरे पिताजी को पता लगे तो मुझे उसी टाइम डिसोन कर दें। Not that he would read it, but so I started with a pen name, and last year I changed my username from Kaira to Vanika because I finally felt like I did not need to hide behind a pen name. Now We're it's so just glad. me. Yeah, that's quite a journey. Coming back, you said you started with a pen name called Kaira. Even now, you have 3 different accounts, more on that later. But your main feed has these really, the series that you follow where you're putting up really dil chhu jane wale quotes on neon green sticky Yes. notes. Oh my God, they are so relatable. Like, I feel like everyone has felt that emotion at some point in their life. How did you come up with that series? What was the thought behind it? कोई थॉट नहीं था। एक दिन मेरे पास लगा कि कोई कुछ पोस्ट करने को है नहीं, तो आई वुड जस्ट राइट एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज कमिंग इनटू माय माइंड। और उस टाइम पे ना आई वाज बेसिकली टॉकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स, और मैंने उससे कुछ तो बताया था कि यार लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, एंड ही बीइंग अ फ्रेंड उसने मुझे बहुत सारा ज्ञान दिया। बट एट दैट पॉइंट मुझे ज्ञान चाहिए नहीं था। आई जस्ट वॉन्टेड हिम टू टेल मी दैट आई कैन डू इट। तो मैंने एक पोस्ट लिखा जिसमें मैंने वाइट बैकग्राउंड लेके उस पर लिख दिया कि समटाइम्स ऑल यू वांट पीपल टू टेल यू इज दिस दैट यू कैन डू इट, तू कर लेगी यार, है ना, तुझे पता है कि सब तेरे लिए बेस्ट है ना। तो आई रोड ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट आई वांटेड हिम टू से, एंड दैट पोस्ट वेंट वायरल। तो पहले आई यूज्ड टू राइट दीज ऑन प्लेन वाइट बोर्ड्स, और प्लेन वाइट टेक्स्ट ऐसा पिक्चर पे लिखती थी मैं। पर फिर एक दिन मैंने स्टिकी नोट लगाया तो इट स्टार्टेड वर्किंग आउट। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नाउ पीपल टेल मी, है ना, जब मैं शोज़ करती हूँ तो लोग आके मेरे को कहते हैं कि यार आप ये लिख दो कि तुम्हें जीतना नहीं तुम्हें जीना है, आप ये लिख दो कि तू कर लेगा यार। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो छोटी सी चीज़ जो मेरा थॉट दिमाग में आता है उसे मैं पेपर पे लिख के दे देती हूँ, लेकिन लोगों को वो याद रह जाता है यार। तो देन आई कंटिन्यूड डूइंग इट, एंड नाउ इट हैज़ बिकम समथिंग कि मुझे करना ही है ये। बिकॉज लाइफ में ना कभी कभी ऐसा होता है कि जब मैं लिखने बैठती हूँ वो कोट, तो मुझे एक अपने बारे में कुछ नया चीज़ पता लगता है। तो it is discovery, it is something, these are also quotes that I want to hear, जो शायद मुझे अगर अच्छा लगेगा अगर मुझे और कोई बताएगा। तो मेरा इंस्टाग्राम पूरा सेल्फिश है, ठीक है, मैं अक्सर वही चीज़ें डालती हूँ जो मुझे सुनने की ज़रूरत है। Yeah, but that's the reason why it looks so real and it's so like you feel like you are talking to your audience, Yeah. which is amazing. एंड देयर आर टाइम्स व्हेन आई फील वेरी वियर्ड अबाउट इट, क्योंकि मैं जो मोटिवेशन दे रही होती हूँ मैं अपनी लाइफ में खुद फॉलो नहीं कर रही हूँ, है ना। 10 टिप्स टू स्टे मोटिवेटेड, 10 थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी। आई एम माई सेल्फ नॉट फीलिंग हैप्पी, बट आई एम क्रिएटिंग दैट काइंड ऑफ कॉन्टेंट बिकॉज आई विश दैट कम्स अप ऑन माई फीड एंड टेल्स मी समथिंग दैट आई विश टू हियर। सो as I tell everybody, I'm just creating for those 10,000 Vanikas that are sitting and feeling the same feelings that I am feeling. Wow, that is so lovely.
Talking about your content, I've also noticed that you bring your content revolves around bringing out your inner child, and there is this really beautiful line that you had written, or actually it was one of your reels in which you say, "मुझे सबसे ज़्यादा वो लड़की समझती है जो मैं हुआ करती थी." Yes. Oh my God, that line is beautiful, and I feel like in today's world we are often forgetting the kid inside us, and sometimes we're even mocked for being childish. Why do you think that's happening, and do you think Instagram is to be blamed for it, or do you think the hustle culture where, you know, everyone's expected to grow really soon, achieve everything really soon, do you think that's one of the reasons? मुझे लगता है इसके लिए हमें एक थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए. आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट इट, बट अगर मैं अपनी पर्सनल जर्नी की बात करूँ तो I often go back to my past because I feel I felt more safe, I felt more secure, and I felt more happy in comparison to what I do now. तो मेरा ना जो डेस्क है उस पर मेरी बचपन की एक फ़ोटो लिखी हुई है और उस पर लगी हुई है और उस पर लिखा हुआ है कोट कि Q2 I won't let you down. तो आई थिंक कि हम ना हमेशा से वही वर्जन बनने की कोशिश करते रहते हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे बचपन में हमें मिला होता एज अ सपोर्ट सिस्टम. तो एंड ऑल्सो आई ऑल्सो फील कि ज़रूरत है अभी लोगों को, क्योंकि अक्सर ना इस टाइम पे जहाँ पे बहुत जल्दी है लोगों को आगे बढ़ने की, जहाँ पर कॉन्स्टेंटली पीपल आर कंप्लेनिंग अबाउट बीइंग लोनली एंड देर आर सो मेनी फीलिंग्स, एवरीबडी इज सो सेंसिटिव एंड देर आर कमिटमेंट इशूज़, दुनिया जहान की प्रॉब्लम हम जेन ज़ी लोगों को. तो एंड इट इज़ ऑल हैपनिंग बिकॉज हम आगे तो बढ़ते जा रहे हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम जाना कहाँ चाहते हैं, और हमें हमेशा ये डर लगता रहता है कि हम भटक ना जाएं. तो मुझे लगता है कि अगर आप कभी भी रास्ता भटक गए हो ना तो आपको वहीं का याद रखना चाहिए या फिर वहीं पे वापस जाना चाहिए जहाँ पर आपने शुरू किया था, बिकॉज देन यू विल रियलाइज व्हाट यू आर वर्किंग हार्ड फॉर. Wow, yeah, that is so true. I can't believe like you're saying such like real, you know, it's like coming from a very good place, and we all know this, but we want to hear it more. Yeah. One other thing that I really look up to you for this is your startup, Pink Experiences. It's full of life, travel memories with strangers, talking to locals. But the space, the travel creation sort of space is quite exhausted. How do you think Pink Experiences is standing out? मुझे लगता है कि सबको ना फोर्ब्स 30 की लिस्ट में आना और बढ़िया बिजनेस बनाना है ना. मैं भी जब भी कोई काम करती हूँ ना, लोग मुझे यही बोलते हैं, वनिका यार देयर इज सो मच पोटेंशियल इन दिस, व्हाई आर यू नॉट वर्किंग सो हार्ड? बिकॉज आई डोंट वांट टू वर्क सो हार्ड. तुम ये क्यों नहीं समझ रहे कि मुझे नहीं बनाना है एक बहुत बड़ा स्टार्टअप और नहीं बनना है 100 करोड़ के बिजनेस का ओनर. मुझे अगर 1 करोड़ भी मिल रहा है ना तो मुझे लगेगा कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है. तो आई जस्ट कॉन्स्टेंटली फील कि हम लोग सक्सेसफुल होने को ना इतना प्रेशर दे देते हैं ना, अपने सपनों को इतना वेट दे देते हैं कि हमको खुद ही रियलाइज़ नहीं होता कि हम अपना प्रेजेंट मोमेंट तो जाने ही दे रहे हैं, उसकी तो वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं. तो पिंक एक्सपीरियंसेस इज स्टैंडिंग आउट बिकॉज आई डोंट वांट इट टू बी अ बिग बिजनेस, आई वांट इट टू बी अ स्मॉल स्टार्टअप, है ना. वो कैफ़ेज होते हैं ना जहाँ पे लोग हाथों से बेकरीज में बना के देते हैं कपकेक्स आपके लिए, और उनका स्वाद हमेशा बड़े चेन से बेटर होता है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारा प्यार डला हुआ है. तो माई ट्रैवल कंपनी, द थिंग दैट आई वॉन्ट टू क्रिएट विद पिंक एक्सपीरियंसेस इज दैट पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस फॉर पीपल. मैंने 300 लोगों को 400 लोगों को होस्ट किया है, पर मैं ये कह सकती हूँ कि एक एक इंसान ना मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है और मैं उस एक एक इंसान के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ, और उस ट्रिप ने उनकी लाइफ में बहुत कुछ ऐड ऑन किया होगा. और ये मेरा हमेशा मतलब इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि भाई अगर तुम्हें वहाँ पे जा रहे हो ना तो हम खुश होने चाहिए. कोई भी इंसान नाराज़ नहीं जाएगा, कोई भी इंसान परेशान नहीं होगा, चाहे उसके लिए मुझे कितना ही एफर्ट करना पड़े. तो अगर आप एक पिंक एक्सपीरियंसेस की ट्रिप पे आ रहे हो ना तो आई एम दैट काइंड ऑफ अ होस्ट जिसको बहुत टेंशन है तुम्हारी, जो वहाँ पे इतनी परेशान है ना बैठी बैठी कि तुमने खाना खा लिया, नहीं खाया ज़बरदस्ती खाओ, ठीक है, पर तुम ये ट्राई करो, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा तुम्हें. तो आई बिकम दैट टीचर, मॉनिटर, फ्रेंड, एवरीथिंग दैट आई एम नॉट सपोज टू डू एज अ बेसिक जॉब डिस्क्रिप्शन, but I still do because I want it to be like a experience for them. तो ये वाला
इज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मैं उन सारे लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ यार मुझे ये बोलना बंद कर दो दैट आई नीड टू मेक इट अ बिग बिजनेस, बिकॉज आई वांट इट टू बी अ स्मॉल बिजनेस. That is so well said. I've never heard that before. Everyone says ki we want to do this, we want to achieve this, and that's the first time I've heard someone say ki I want to keep it small and I want to give real experiences. Also reminds me, I saw that reel of yours where you were working at this mountain cafe for a day, and it was, I think that's goals for me, personally. Coming back to content creation, what according to you is very important when it comes to a brand and creator collaboration? And there's a follow-up question. What are the 3 top things that you wouldn't negotiate on if you are in a brand collaboration? तो मुझे तो ये लगता है कि what is the most important thing between a brand and a creator is the brand understanding the creator story. मतलब कभी कभी ना ब्रांड ये नहीं समझता कि भाई हमारी जो कहानी है ना उसी वजह से हमारा लोग कंटेंट देखते हैं, ठीक है. तो अंडरस्टैंडिंग द क्रिएटर एंड मेकिंग द ब्रांड, मतलब बेस्ट चीज़ तब निकल कर आएगी जब ब्रांड समझेगा कि हम जिस इंसान को यूज़ कर रहे हैं ना उसे अपना फोटे पता है और वो अपने तरीके से बात करे. एंड ऑल्सो आई ऑल्सो फील कि अभी जो कुछ टाइम से हो रहा है वो ये है कि लोग डायरेक्टली प्रमोट नहीं करते हैं, है ना. लोग अपना they put forward the idea and the brand is indirectly promoted in this. So I think that is also something that is very interesting for me. जैसे कि अभी एक नायाब मिद्दा करके, शी इज़ अ पोएट, शी डिड अ ब्रांड कोलैबोरेशन फॉर परफोरा in which she performed a poetry called Muskurao, and it was a toothbrush brand thing. And she went viral from that, है ना. It had about 24 million views and everybody got to know about Perfora. तो I think जब एक ऑथेंटिक वॉइस ब्रांड रखने देता है ना एक क्रिएटर को और उन पे ट्रस्ट करता है तो वो बेस्ट तरीके से काम कर सकते हैं. तो आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. और मैं जिस चीज़ में what is 3 things that are non-negotiable for me is I can't this is what I've learned the hard way कि आपको ना मार्केट ख़राब नहीं करनी है. जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि एज अ क्रिएटर, एज अ फ्रीलांसर आपके पास महीने में पैसे नहीं होते हैं, है ना, और आपको लगता है कि अगर ये कम भी दे रहा है ना तो ले लेता है क्योंकि काम आएगा. बट दैट ओवरऑल ब्रिंग्स डाउन योर कम्युनिटीज कोट प्राइस फॉर द ब्रांड वर्क दैट यू डू. तो दैट इज़ नॉट. एक महीना आप कम पैसों में काम कर लो, है ना, मतलब अपने जितने कम रिसोर्सेज है उसमें काम कर लो, लेकिन नेवर एवर डू वर्क फॉर less amount than what you're worth for and what is the market price. Second is कि I also feel कि वो किस तरीके, जितना मुझे डायरेक्ट वो देता है मैं उतना अवॉइड करती हूँ, है ना, उस चीज़ को करने का जितना डायरेक्ट प्रमोशन होता है. और तीसरी चीज़ ये है कि आई वर्कड विद ब्रांड्स, है ना, जो लोग बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं, है ना, who go through multiple round of changes in what you are doing and they just make you feel that you're disappointing them. So I would better not work for you than disappoint you. Yeah. So brands that don't see your value don't work for them. That is simple. Now you won the Cosmo Blogger Award of नहीं जीती नहीं हूँ मैं, नॉमिनेट हुई थी. कोई बात नहीं, होता रहता, मेरे दिमाग में तो मैं जीत गई. Okay, so you've been nominated for the Cosmo Blogger Award of Emerging Voice of the Year. You're an ace at storytelling. You have a great travel startup. You are acing literally, I think, every goal that anyone would have. What do the next 5 years look for Vanika? Next 5 years look for Vanika. बस यही कल ही मैंने ना एक रील देखी थी. आजकल तो वैसे ही सारे रेफरेंस रील के आते हैं, तो कल ही मैंने एक रील देखी थी जिसमें एक लड़की कहती है माई 2025 विल लुक फॉर, है ना, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग. तो आई थिंक मी फोकसिंग मोर ऑन माई हेल्थ इज वॉट माई 5 years लुक लाइक. मी ट्रैवलिंग मोर. आई वॉन्ट टू गो ऑन अ यूरोप ट्रिप. प्लीज़ कोई भी ब्रांड है जो मेरे को स्पॉन्सर कर सकता है तो आई एम रेडी, है ना. और मैं बहुत अच्छा कंटेंट बना सकती हूँ, ठीक है, जितना है आप देख रहे हो उससे ज़्यादा बना सकती हूँ, ठीक है. तो आई थिंक दैट इज़ माई अदर गोल. एंड थर्ड थिंग इज़ आई वांट टू ग्रो ऑन यूट्यूब. सो आई हैव नेवर लाइक फोकस्ड ऑन यूट्यूब ever. I've just been on Instagram, but in the next 5 years I want my YouTube community to grow. And thankfully, even though मैंने ज़्यादा कुछ डाला भी नहीं है, तब भी 24,000 लोग मेरे साथ वहाँ पे जुड़े हुए हैं.
तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर पीपल हु सपोर्ट मी इन एवरी लिटिल थिंग दैट आई डू. अगर मैं एक शीशे के सामने बैठ के रो भी रही होती हूँ ना और उसकी रील बना के डाल देती हूँ ना, तब भी मुझे 1000 लोग मैसेज कर देते हैं कि वनिका थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट. कितने प्यारे लोग हो तुम. That's because you have a very loyal community that you've really worked hard for. पता ही नहीं कैसे, मैंने तो पता नहीं बहुत अच्छे काम किए जो ऐसे लोग मेरे को मिल गए हैं. मैं जेन्युइनली ऐसे समझती हूँ कि भाई ये मेरे पे एहसान कर रहे हैं, मैं तो बस अपनी बात बता रही हूँ. तो इट इज़ देयर. पता है एक बहुत ही खूबसूरत बात थी जो मेरे एक दोस्त ने मुझे थोड़े दिन पहले कही थी. आप मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गए हो, इसीलिए बता रही हूँ कि देयर इज नथिंग मोर ब्यूटिफुल देन पीपल अलाउइंग यू टू लव देम. Oh, how nice. है ना, जब कोई तुम्हें कुछ देने देता है ना प्रेम में, और वो एक्सेप्ट करता है अपनी खुले हाथों से, तो वो इंसान ना अपने डर से, अपने प्रिजम्पशन से हटकर, उनसे लड़कर आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है, एक स्पेस देता है अपनी लाइफ में आने का. तो जो लोग मेरी बातों को अपने जीवन में जगह देते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है उनके अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ है मेरे से. तो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर पीपल who are allowing me to love them, to give them what I can offer to them, and I'm just very grateful. I think जब कोई देता है ना तो वो तो खाली हो जाता है, लेकिन जो लेता है ना वो पूरा भर जाता है. तो उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए, उसके अंदर इतना बड़ा दिल होना चाहिए कि वो प्रेम ले ले. No, but we have a lot of love to give you, so there is, you don't need to worry. I will accept with my whole heart. Okay, lastly, in one of your talks, you said this beautiful line where you said, I understand now that if we all try to be sons of our homes, we will never realize the true superpower of a woman. It really touched me. And इसी बात पे, can you do you have a poetry or 2 to 3 lines that you would like to narrate to us about womanhood? मेरे पास एक छोटी सी स्टोरी है ना. I will try to keep it even more short. कि I always thought, मुझे हमेशा से लगता था कि अगर मैं घर का बेटा होती ना तो सब मुझे ज़्यादा सीरियसली लेते, सब मुझे समझते कि मैं हेल्प कर सकती हूँ उन्हें, और है ना everybody in my house would just not treat me like a daughter. मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि दादी ना वो झुमके मेरी शादी के लिए नहीं बचा के रखती अगर मैं घर का बेटा होती तो, है ना. एंड पापा would not compromise on trips if I was a son. And I always loved जब मुझे घर का बेटा, है ना, पापा बेटा बेटा कहकर बुलाते थे. लेकिन एक बार जब उन्होंने मुझे मेरी मासी के सामने बेटा कहा, तो मेरी मासी ने मुझे एक छोटी सी कहानी सुनाई थी when I was just 7 years old, and that stayed with me. तो एक बार ना एक चिड़िया जंगल से इंसानों की बस्ती में आ गई. जब उसने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, कोट पहन के जाते हैं, है ना, और लैपटॉप चलाते हैं, बहुत बढ़िया घरों में रहते हैं, तो वो उसे देखकर ना बहुत इम्प्रेस हो गई और उसे लगा कि उसे भी इंसानों की बस्ती में अपनी जगह बनानी है. तो इंसानों ने जब उस चिड़िया को देखा और देखा कि वो उड़ सकती है, तो उन्होंने भी अपने हाथ फैलाकर उड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उड़ नहीं पाए. तो उन्होंने चिड़िया को ये बताना शुरू कर दिया कि तुम कहाँ कमज़ोर हो, तुम्हारे जो पंख है ना उसी की वजह से तुम उड़ नहीं पाओगी. चिड़िया को लगा कि उसे अगर जगह बनानी है तो उसे इंसानों को कॉपी करना पड़ेगा, उसे इंसानों की तरह बनना पड़ेगा. तो इसीलिए चिड़िया ने इंसानों को कॉपी किया, और जब वो अपने पंखों से, है ना, सॉफ्ट पंखों से वो बड़ी बड़ी ईंटें उठाती थी ना, तो उसको चोट लग जाती थी. एंड शी वुड क्राई अंटिल वन डे, जब उस चिड़िया ने देखा कि एक दूसरी चिड़िया है जो उड़ रही है इंसानों की बस्ती में, और सब उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, सब उससे बात कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि उसने अपनी जगह बना ली. तो जब दूसरी चिड़िया के पास गया और उसने उससे जाके पूछा कि तुमने अपनी जगह कैसे बनाई, तो दूसरी चिड़िया ने कहा कि जब मैंने इंसानों की बातें सुनना बंद कर अपनी चिड़िया होने की सुपर पावर के बारे में जाना ना, और अपनी पंखों की ताकत को पहचाना ना, तब मुझे समझ आया कि मेरा चिड़िया होना कितना स्पेशल है. और तब मैंने नोटिस किया कि मैंने अपनी घर की औरतों को कभी देखा ही नहीं है. मतलब कैसे मेरी बुआ को मेरी दादी बिना सोचे समझे कॉल करके अपनी सारी दिल की बातें शेयर कर देती है, कैसे मेरी मम्मी कई बार फाइनेंशियली मेरी नानी को सपोर्ट कर पाती है, और मासी हमेशा से करती आ रही है. तो the fact that we are sensitive, the fact that we have all of these emotions going on inside of us, the fact that our body functions a different way, जिससे हमें लगता है कि शायद हम मर्दों से थोड़ा कम है, वैसा है ही नहीं. हम औरत हैं और हमें मर्दों की तरह ट्रीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जैसे हैं ना, हम खूबसूरत हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि it has become this beautiful thing where I have discovered that I don't want to be like boys. I don't want to be like them. I want to be a woman. I want to have everything that a woman needs, from extra care in mood swings and periods.
मैं जो भी हूँ ना, तुम अगर मुझे नहीं लोगे अपने ऑफिस में तो तुम्हारी दिक्कत की बात है, क्योंकि तुम्हें मेरा पर्सपेक्टिव नहीं मिलेगा. माई पर्सपेक्टिव इज वेरी प्रेशियस. इन दी एंड बात करने तो तुम मेरे पास ही आओगे ना. That is such a good way of looking at it. It's like a whole new, like, and the story was just too good. Thank you, Masi. Thank you, Masi. Yes. But I think this has to be one of the most wholesome chats I've had, and one of my favorite episodes for sure. Thank you so much for joining us, and thank you for sharing such valuable insights and sharing your love with us. Thank you, and we hope to see you soon. Yay! I would also like to be here soon. Thank you so much. Amazing. I had such a great time. Yay! As smart creators, your influence can shape society. Join the ASCII Responsible Influencer course today and earn your certificate. Learn from the experts and become a trusted name in the world of influencing. Use our coupon code SOCIALSTAR24 to enroll now.